Hello everyone, welcome to the Vedantu Commerce. This is me Aditya Arya, your master teacher of mathematics statistics. And in this session, we are going to discuss the best techniques to attempt MCQs. So whether you are going to attempt the CBSE board term 1 paper which is MCQ based, और इफ़ यू वांटेड टू अटेम्प्ट एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कुछ भी हो सकता है, आईपी मैट, कैट हो गया, या फिर आपका आईआईटी हो गया, या फिर आपका डीयूजेड, कोई भी आपका एग्जाम हुआ, किसी भी फील्ड से अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस पर होता है, कुछ ऐसी बातें जो आप सबको हेल्प करने वाली हैं. आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स एंड आई होप गाइज यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. और ये जो टेक्निक्स हैं आपके पेपर को, आपकी तैयारी को और मस्त बना देंगे, ग्रेट बना देंगे. आगे बढ़ने से पहले, बिफोर आई डिस्कस दीज टेक्निक्स, आई वांटेड टू शेयर समथिंग विद यू पीपल दैट हैज नेवर हैपन बिफोर in the history of the education, and that is the guarantee on the education. We are giving the guarantee that definitely you are going to have the improvement in our enrollment, long-term enrollment program. And if you are not able to improve, we will give you the refund all your money. We do care for your time, effort and your money. And guys, definitely we are very sure that you are going to have the improvement. The link for the enrollment is given in the description box and the code is ADAPRO. Using this code, you will get that 10% off. So now, let's start the session. And before that, do not forget to show your love. Hit the like button, share this video to your friends, to your mates, and subscribe if you wanted to have the video on the right time in your in your mobile system or your laptop or PC. So guys, we are about to discuss now best techniques to attempt MCQs. What is MCQs? I'm just giving you a 1-minute brief. MCQs means multiple choice questions. That means you will be having one question and you can have 4 or 5 options. Most of the exams do have 4 options, and in most of the exams only one option is correct. I hope you have got the idea what is exactly MCQs, what exactly I'm talking about. Now there is a benefit of MCQs questions. Now what is the benefit? First of all, let's discuss this. The benefit is that sometimes you do not know the complete formula. Sometimes you do not know the complete concept of the question, but still there is a probability that you can get the right answer. And I would say not right answer, get the right options. More specifically, आपका आंसर नहीं आएगा लेकिन आपका ऑप्शन आपको सही मिल जाएगा. दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बोला, यू माइट नॉट गेट द राइट कॉन्सेप्ट और राइट फॉर्मूला, आपको एक राइट आंसर मिल जाएगा. वैसे ही आपको पूरा क्वेश्चन बिना सॉल्व किए कम टाइम के अंदर आप यहां पर क्वेश्चन कर सकते हो. सब्जेक्टिव पेपर इज हैविंग एवरेजली सेम टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, बट एमसीक्यूज में अगर एक इंसान 10 सेकंड में लगा रहा है, वही क्वेश्चन दूसरा इंसान 3 मिनट में लगा रहा होगा. सो एमसीक्यूज के 2 फायदे, वन इज यू कैन सॉल्व इट स्पीडली विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट. तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है. लेकिन अब पहली चीज आपको होगी कैटेगराइजेशन. ऑलवेज रिमेंबर, कैटेगराइज द थिंग्स. The more you categorize, the more it is accessible and manageable, and you will have more growth. Kind of. यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? जो मैंने अभी बातें बोली, कैटेगराइजेबल, मैनेजेबल और आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, यहां पर मेरे कहने का मतलब ये है, आपके पास 2 चॉइसेस हैं बेटा, कि मैं पहले मैं क्या करूंगा. जैसे मैं पैदा हुआ, मेरे सामने रख दी किताब किस चीज की, कि पढ़ो इंटीग्रेशन. मैं क्या करूंगा, मुझे शायद वो चीज़ समझ में ना आए और आई स्टार्ट हेडिंग द सब्जेक्ट कि यार ये क्या बवाल चीज़ है, हटाओ इसको. लेकिन ऐसा बचपन में नहीं होता है. बचपन में आपको छोटी छोटी सिंपल चीज़ें दिखाई जाती. तो कैटेगराइज करना है सिंपल, मीडियम, एडवांस, और ये काम आपको करना पड़ेगा. आप ये मान के चलिए, एग्जामिनर इज ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू, डी एनर्जाइज यू, और आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है शुरू के क्वेश्चंस में और लास्ट के क्वेश्चंस में. शुरू के 5% क्वेश्चन की बात कर रहा हूं. शुरू के 5% क्वेश्चन, लास्ट के 5% क्वेश्चन आप मान के चलिए. यानी कि अगर मान के चलो सीबीएसई टर्म 1 में 40 क्वेश्चन है,
5% का मतलब हुआ शुरू के 3 सवाल मान लो, और आखिरी के 3 सवाल, 6 सवाल हुए। आप देखोगे कई बार ये सवाल ना बहुत मुश्किल मिलेंगे आपको। तो कैटेगराइज कैसे करना है? रीड अ क्वेश्चन एंड थिंक वेदर आई कैन सॉल्व इट इमीडिएटली, इफ यस सॉल्व इट इमीडिएटली। मतलब इतना सिंपल है कि मैं इसको फटाक से कर दूंगा। ये एक फर्स्ट कैटेगरी में आता है। दूसरी कैटेगरी में कौन सा सवाल आता है? यार मैं इसको कर तो सकता हूं बट थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेगा। पहले कैटेगरी का सवाल 1 मिनट में, 2 मिनट में हो जाएगा, श्योर है हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी का सवाल 2 से 3 मिनट में होगा बट थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग सकता है, आई एम नॉट श्योर। तीसरी कैटेगरी का सवाल आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम एबल टू सॉल्व इट और नॉट। सो इन द फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? रीड अ क्वेश्चन एंड थिंक I can solve it immediately and quickly. Yes, do it immediately. If you feel like I can solve this question but it will take more time, just circle it for the second round. और आप to भी लिख सकते हो to mention that this is question for the second round. And if you feel like I do not know anything about this question, leave it for the third round. जिन क्वेश्चन को आपको लगता है यार ये मुझे नहीं आता है, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कुछ नहीं, सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। इससे क्या फायदा मिलेगा? आप अपना बहुत सारा टाइम सेव करोगे बिकॉज ऑफ दिस। सो इन द फर्स्ट 15 मिनट यू विल सॉल्व समवेयर अराउंड, आप देखिएगा आप करीबन करीबन अपने पेपर का 30% सॉल्व कर चुके होंगे। 30% इज अ वेरी बिग नंबर। मैं आपकी सीबीएसई की बात कर रहा हूं फिलहाल के लिए। 15 मिनट में आप, अगर हम सीबीएसई की बात करें तो 15 मिनट के अंदर हम करीबन करीबन 10-12 सवाल लगा चुके होंगे। अगर आप दूसरे एग्जाम की बात करेंगे तो आप अपना टाइम अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। सीबीएसई इज ऑफ 1 आवर 30 मिनट्स, ओके, 1.5 घंटे का पेपर होता, तो आप अपना टाइम उसी फ्रैक्शन में, यानी कि अगर आपका एग्जाम 3 घंटे का हुआ तो आधे घंटे में फर्स्ट राउंड खत्म करो। मेरा पॉइंट ये है, अगर 6 घंटे का हुआ तो इसी राउंड को 1 घंटे में खत्म करो। ठीक है, सो इन द फर्स्ट राउंड व्हाट यू आर डूइंग, अगर हम सीबीएसई टर्म 1 के लिए बात करें, सो इन द फर्स्ट राउंड व्हाट यू विल डू, यू विल check the question whether I can do it or not. So basically in the first 15 minutes categorization is the thing that you will do, and apart from this solving 10 to 12 question at least which are of the simplest category, जो आप देखते ही कर लोगे, तो वो आप कर दो। अब दूसरे राउंड में आपका टाइम सेव हो गया। नाउ यू नो व्हाट क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट इन द सेकेंड राउंड बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कैटेगराइज। अब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो जिन क्वेश्चंस पे आपने लिखा हुआ है 2, कूद पड़ो उनके ऊपर, और अब इन क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ते हुए करना है बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर बिट आपके लिए लेंथी हो सकते हैं, थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई यू हैव पुट इन द सेकंड राउंड। ये आपको आप मान के चलिए 40-45% पेपर इसी बेस पर आता है, 40 to 45% पेपर, यानी अगर सीबीएसई टर्म 1 की बात करूं तो करीबन करीबन 16 से 18 क्वेश्चन आपके इसी बेसिस पर आने वाले हैं। सो गाइज बाय द एंड ऑफ द सेकेंड राउंड, यानी कि सेकेंड राउंड आपका 45 मिनट, 45 मिनट से 60 मिनट के बीच का होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। यानी कि आप नोटिस करोगे when in 1 hour or 1 hour 15 minutes, somewhere between this 1 hour 15 मिनट के अंदर आप लोगों ने 1 घंटा 1-1.25 घंटा के अंदर आप लोगों ने 30 क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। अगर आप दूसरी स्ट्रेटजी जाते हो, मैं आपको बताता हूं, आप इतने टाइम में इतने क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। आप लगाओगे 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप मुश्किल के ऊपर कूदोगे तो दैट विल ईट अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू विल हैव less time for the easy questions that you can do. Easy question can take more time but you are sure कि आप उसको कर लोगे। थर्ड राउंड के अंदर, अब थर्ड राउंड के अंदर आते हैं, अभी इसमें अता पता नहीं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसलिए थर्ड राउंड यानी कि आपके पास बचता है 15 मिनट से लेकर आधा घंटा, 30 मिनट से लेकर 15 मिनट। और बेटा इसके अंदर आपके पास करीबन मान के चलिए 20-25% पेपर यहां से होता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली सम 8 to 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। अब इनके साथ कैसे डील करना है और फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के क्वेश्चंस को भी कैसे डील करना है, मैं स्पेसिफिकली थर्ड राउंड की बात करूंगा। व्हेन यू डू नॉट नो हाउ टू डील विद अ क्वेश्चन डायरेक्टली,
यानी कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं उस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूं, आई विल डिस्कस आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो आपको क्या करना है, हिट द लाइक बटन, चिपक के बैठे रहेंगे और अगले कुछ मिनटों में आई विल ओपन दिस सीक्रेट, कैसे मैं कैसे हैंडल करता था पहले। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस पूरी प्रोसेस में डू नॉट रश, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने आपको बोला 1 घंटे में, सवा 1 घंटे में आप उससे पहले खत्म कर लोगे। आप आराम से करो, उससे पहले कर लोगे। लेकिन अगर आप बोलोगे सर 15 मिनट बचिए लास्ट में, ये तो बहुत कम टाइम है, नहीं। अगर आप जल्दीबाजी करोगे इस सेक्शन के अंदर विच यू ऑलरेडी नो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, आता है, इसमें जल्दीबाजी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसको अच्छे से कर लो, सिक्योर द मार्क्स ओवर हियर, डू नॉट रश, रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली, स्लोली, कामली। अच्छा, एक छोटा सा स्ट्रेटेजी मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं कि इफ द क्वेश्चन इज ऑफ द 5 लाइन, इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट ट्वाइस और थ्राइस, यार 2-3 बार पढ़ने के बाद आप पंखा देखोगे सर समझ में नहीं, इससे बेटर है राइट डाउन द डेटा, फैच द डेटा फ्रॉम द क्वेश्चन ऑन द पेपर। लिखा हुआ है, मान के चलिए राम की एज है 45 साल, 45 ईयर्स ओल्ड, लिख लीजिए R = 45। कमला की एज है 45 मोर देन बिमला, तो इक्वेशन लिख दो, कमला इज इक्वल टू 45 प्लस बिमला, जो भी इक्वेशन बनती है। तो राइट डाउन एंड फैच द डेटा, मेक द इक्वेशन इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस। जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिले, राइट डाउन ऑन द पेपर। तो डू नॉट रश, और जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको ध्यान से पढ़ना है, डेटा फैच करना है। और हाँ, ऑप्शंस और क्वेश्चन में कई बार ऐसा लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, लेकिन आप करके आते हो करेक्ट का। हाँ, ये लिखा होता है। कई बार ऐसा लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत नहीं है, मतलब पूछ क्या रहा है, सही कौन सा है। आई बात समझ में? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, यू गेट द सिमिलर आंसर एज द ऑप्शन, योर टिकट मार्क, बट ऑप्शन सी इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी करेक्ट। तो आप कई बार क्या होते हो कि ए भी सही है, बी भी सही था, और सी बोल रहा है कि ए एंड बी करेक्ट, सी इज द राइट आंसर, लेकिन आपने मार्क कर दिया ये जल्दीबाजी में। ये हमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि बेटा पता है क्या है, एमसीक्यूज का एक कॉन्स है, और वो ये है कि अगर आप सही करते हो तो फुल मार्क्स, नो एक भी मार्क्स ऐसा नहीं कि सर उसने आधा मार्क्स काट ले, हैंडराइटिंग गंदी थी। लेकिन कॉन्स क्या है इसका कि यहां पर अगर आपने गलत किया तो 0 मार्क्स, सही तो पूरे मार्क्स, गलत तो 0 मार्क्स। सो यहां पर बहुत ध्यान से हमें आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं कि ऑप्शंस को यूज करना है, और ये टेक्निक्स काम आएंगी स्पेशली इन द थर्ड जो आपका सेक्शन है, जहां टफ क्वेश्चन, जो आप बोल रहे हो ना कि सर 10 सवाल, 8 सवाल, 10 सवाल 15 मिनट में या आधे घंटे में कैसे करें, इनको कैसे उड़ाएं, ये चीज अब हम देखते हैं। हालांकि यू कैन यूज दीज टेक्निक्स फॉर क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अगर आप ये टेक्निक लगाते हो ना, अगर आपके सामने 10 मुश्किल सवाल आते हैं, आप 6-7 उड़ा दोगे। 2-3 में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाउट रह सकता है, बिकॉज समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू एलिमिनेट ऑल द ऑप्शंस। तो सीखते हैं टेक्निक को। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं आपसे कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछूंगा, एंड यू विल लेट मी नो द आंसर्स एंड आई विल टेल यू द टेक्निक्स। सो गाइज, आई होप यू ऑल सपोर्ट दिस मेथड। ऐसा नहीं ना कि नहीं सर हम तो प्रॉपर मेथड से ही करेंगे। एग्जाम के अंदर यू हैव टू गेट द राइट ऑप्शन। मेथड आपका कोई चेक नहीं करेगा। यानी कि मैंने आपको बोला था कि वही एक क्वेश्चन को कोई इंसान 3 मिनट में लगाता है, और वही क्वेश्चन एक इंसान 10 सेकंड में लगाता है। बेटा वो जो 3 मिनट में लगा रहा है ना, दैट पर्सन इज इन्वेस्टिंग मोर टाइम इन गेटिंग द लेस आउटपुट। बाहर जब रिजल्ट आएगा ना, ये बच्चा पूरे साल मस्ती कर रहा था और ये बच्चा पूरे साल पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बाहर जब रिजल्ट आएगा तो बोला क्या जाएगा कि जो पढ़ने वाला बच्चा ना, ये यार इसने पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की, और ये जो खेला है पूरी साल, बट इसको पता है मेरे पास टेक्निक है, पूरे साल खेलने के बाद भी टेक्निक है, मैं आराम से पेपर लगाऊंगा, ज़्यादा मार्क्स लेकर आऊँगा। इसके लिए क्या बोला जाएगा, ये जो खेलने जाता था ना, वहाँ पर भी किताबें लेकर जाता था, वहाँ पर धूप में बैठकर पढ़ाई करता था। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, यस और नो? आप सबने एक्सपीरियंस की होगी ये वाली बात। So guys, I hope we all are ready for this method which says to eliminate the options and put the values.
बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब यहां वैल्यूज दी हुई हैं, मान के चलते हैं दिस इज अ टफ क्वेश्चन, लेट्स अज्यूम, एंड आई डू नॉट नो हाउ टू कैलकुलेट द रूट ऑफ द इक्वेशन, आई डू नॉट नो, बट हाँ बेसिक आना चाहिए यार। अब ये नहीं कि सर हमें तो कुछ भी नहीं आता है, ठन ठन गोपाल भोले भंडारी बन के बैठे हुए हैं कि कुछ नहीं पता है अपने को। रूट का मतलब पता होना चाहिए, रूट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर तो सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, 4 पुट, देखो ऑप्शंस को चेक करो, -4 +4 5 -5। और गाइज अगर आप 4 और -5 को पुट करते हो, 4 - 5 इसमें आप पुट करके देखिए, -4 पुट करो, -5 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, आपको ये आंसर मिल जाए। मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ये आप करोगे, आपको मालूम चल जाएगा बिना मेथड को जाने, विदाउट यूजिंग द स्प्लिटिंग मेथड। आई एम नॉट सेइंग द स्प्लिटिंग मेथड इज लेंथी और इट्स अ शॉर्टकट, मुझे पता है, वो आपको ही पता है, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ यहां से है, यू कैन पिक द वैल्यूज फ्रॉम द ऑप्शंस एंड पुट इन द क्वेश्चन एंड वी विल सी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सेटिस्फाई। एक ही सेटिस्फाई करेगा, और ये बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही करता है। एक और क्वेश्चन, सम ऑफ द सीरीज हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें इतना तो पता है ना, ये क्वेश्चन पढ़ना तो आता है, सम ऑफ दिस सीरीज इज वन ऑफ दीज ऑप्शन। मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूं, n=1 पुट करता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला n टर्म्स का है। n=1 लिया मतलब सिर्फ ये हुआ। अब n=1 ऑप्शन ए विल नॉट सेटिस्फाई, वैलिड ही नहीं है फॉर्मूला, तो हटा दो। ऑप्शन बी को देख के समझ में आता है यार ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये तो आपका नेचुरल नंबर्स के सम के लिए, यहां कैसे लग जाएगा, फिर भी लगा के देखते हैं, 1 के लिए काम कर जाएगा। इधर लगा के देखो, 1 के लिए काम करेगा, 1 × 1 + 2/2, 1 × 3/2 नहीं है, 3/2 मतलब 1.5, लेकिन सम ऑफ 1 टर्म क्या है, 1, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एलिमिनेटेड। यहां पर आपने खुद से वैल्यू सोची, और यू कैन से यू आर एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम द क्वेश्चन एंड पुटिंग इन द ऑप्शन। सो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम द ऑप्शंस और इन द ऑप्शन, या तो आप ऑप्शन के अंदर पुट करो या ऑप्शन से लेकर क्वेश्चन में पुट करो, या आपके ऊपर है। अब ऐसे ही आप सॉल्व करोगे, दोनों एलिमिनेट। अब यार फंस गए, हमने तो बोला था वैल्यू पुट करने पर आंसर आता है, कोई बात नहीं, 1 से नहीं आया 2 से आएगा, 1 + 3 4, यानी कि n=2 टर्म्स, अगर 2 टर्म्स का सम लेता हूं तो 4 आना चाहिए, यहां पुट करो n=2, 2 × 2 + 1/2 = 3। जैसे मैंने आपको बोला ये सम आपका नेचुरल नंबर्स का है, और यहां पर पुट करो 2, 4 आ जाएगा, तो खत्म, ऑप्शन बी एलिमिनेटेड। आई बात समझ में, आपको कैसे करना है ये चीज। अब कई बार आपके साथ क्या होगा, टफ क्वेश्चन में स्पेशली, टफ क्वेश्चन में आपके साथ, आई होप टेक्निक समझ में आई, कि वैल्यू पुटिंग फ्रॉम द ऑप्शंस इन द क्वेश्चन और वैल्यू पुटिंग फ्रॉम द क्वेश्चन इन द ऑप्शन डोमेन रेंज के सवाल में काम आएगा। ठीक है, आपका अगर मैं लेट सपोज द चैप्टर इज LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वहां पर काम आएगा, बहुत काम आने वाला है। AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां पर काम आएगा। अगर हम 11th की बात करें, सीक्वेंस सीरीज, देयर इट विल बी ऑफ द यूज, बहुत यूज होगा। सेट्स का चैप्टर है, देयर विल बी यूज। रिलेशन फंक्शन बहुत काम आने वाला डोमेन रेंज के अंदर। आपके अब मान के चलिए इन एवरी चैप्टर देयर इज अ यूज ऑफ दिस टेक्निक, और अगर इस टेक्निक को यूज करते हैं देयर इज अ नो नीड टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन। और दूसरी बात, द चांसेस ऑफ द एरर रिड्यूसेस अ लॉट, क्योंकि आपने एलिमिनेशन पे काम किया है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सेटिस्फाई कर रहा है। आपका हो सकता है फॉर्मूला आपका कुछ और आंसर दे रहा हो, लेकिन एलिमिनेशन अप्रोच कभी गलत आंसर नहीं देती है बेटा, क्योंकि आपने क्रॉस चेक करके आंसर दिया है। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी, इसका मतलब क्या है, समटाइम्स प्रॉब्लम क्या आती है कि मैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट और द फॉर्मूला इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, स्पेशली इन द थर्ड कैटेगरी, मान लेते हैं। हालांकि या मैंने जैसा आपको बोला, आप फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में लगा सकते हो। फर्स्ट मतलब सिंपल, सेकंड मतलब मीडियम, थर्ड मतलब एडवांस। सोल्यूशन क्या है, मानता हूं पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका नाम पी से था। क्या नाम है उसका पी से, पारो, प्रियंका, हाँ कुछ ऐसा हो सकता है। थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद है, पी के बाद कुछ आर भी था, लेकिन ऑप्शन में के फॉर कैटरीना, इसको हटाओ। हाँ,
के फॉर कैटरीना इसको हटाओ, ए फॉर आलिया इसको हटाओ। बात समझ में आ रही है? अगर आपको रफली भी चीजें याद है ना, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी, थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट किसी भी कॉन्टेक्स्ट में याद हो कि यार मुझे याद है अब आंसर आया प्रियंका और पारो, लेकिन पारो तो शाहरुख की पिक्चर में थी, प्रियंका रणवीर वाली मूवी में थी। कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूं मैं स्टोरी का। मुझे लगता है कि माय फेवरेट इज रणवीर सिंह, तो आंसर इज आई थिंक दैट, क्योंकि मैं रणवीर की मूवी ज्यादा देखता हूं, शाहरुख की थोड़ी कम देखता हूं। मैं आपको एक स्टोरी समझा रहा हूं, आई बात समझ में? कई बार आपके साथ भी होता है कि किसी ने पूछा यार उसका नाम क्या था, यार नाम याद नहीं है, लेकिन शायद ऐसे ही आपने किया होगा कभी ना कभी। आई बात समझ में? तो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी का मतलब क्या होता है? नॉट एबल टू रिकॉल, दैट्स द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? रिकॉल रफली एंड एलिमिनेट। थोड़ा बहुत तो याद होता है ना, बस उसके हिसाब से करना है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मुझे नहीं पता डोमेन कैसे निकालना है, व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट, मुझे कुछ नहीं पता है। मेरे को थोड़ा बहुत ही आता है। थोड़ा बहुत क्या आता है? जैसे कि रूट ऑफ एक्स मुझे थोड़ा बहुत आना चाहिए। और थोड़ा बहुत क्या है? मान लीजिए आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस, मान लेते हैं आई डू नॉट नो अबाउट साइन इनवर्स ऑफ एक्स, मैंने नहीं पढ़ा। मान लेते हैं दिस क्वेश्चन हैज केम इन द 11, तब तो श्योर बात है ये नहीं पढ़ा होगा। ये नहीं पढ़ा होगा ना, हटाओ इसको। ये तो पढ़ा है, थोड़ा बहुत कुछ तो याद आ रहा है। एक्स अंदर वाली चीज नेगेटिव हो सकती है, इतना मुझे याद आ रहा है। चेक करते हैं। ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। नाउ अर्लियर यू आर हैविंग 4 ऑप्शंस, guessing the one is 25% probability, now the probability is increased to 50%। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कोई एक आंसर होगा। अब क्या करना है? इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि इसमें दो नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 0 इज नॉट करेक्ट। 0 पुट करके देखो भाई, 0 0। फिर मैंने सोचा यार मुझे साइन इनवर्स तो याद नहीं है, पर मुझे साइन ट्रिग्नोमेट्री तो याद है ना। ट्रिग्नोमेट्री में मुझे पता है कुछ 0 1 -1 से रिलेटेड कुछ याद है, रेंज होती है, मुझे याद है -1 to 1। 2 तो होता ही नहीं है उसके अंदर, रफली आइडिया। साइन फंक्शन के अंदर 2 नहीं आता है, 1 आ जाता है, 0 आ जाता है, और 0 से 1 के बीच की वैल्यू भी आ जाती है। लेकिन यार ये 2 कहां से आ गया, और 1 के बाद की वैल्यू? आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम थिंकिंग राइट और रॉन्ग, बट मेरा कॉन्टेक्स्ट एक रफली आइडिया सही है। तो दोनों में से जज करना है तो मैं इसको पहले पकड़ूंगा। हाँ, अब आप देखो आपके पास क्या था। मान लेते हैं टफ क्वेश्चन है, यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट, लेकिन आप सुनिए ध्यान से, आप उस क्वेश्चन को छोड़ने वाले थे, सुन लेते हैं, ठीक है। बट आपने क्या किया? पहले एक कॉन्टेक्स्ट से आपने इन दोनों को रिमूव किया, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग द आंसर इंक्रीजेस। फिर अब आप इसको छोड़ने वाले हो, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन बिना वजह तुक्का मारने से अच्छा है कि आप थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट बनाकर, अगर आप सोचोगे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं यार, मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए ना इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ, और मैं ये नहीं बोलूंगा हर बार सही होता था, बट यस आई एम रेडी टू टेक द रिस्क। मैंने 10 में से 8 सवाल मेरे सही होते थे, 8 या 7 सवाल। यार क्यों ना लूं? अगर मैं रिस्क नहीं लूं तो बेटा 10 में से 10 निकल गए, लेकिन मैं रिस्क लेता था तो 7 से 8 सवाल मेरे हो जाते थे। मैं देखता था 7 से 8 सवाल, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 24 मार्क्स और 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कुल मिलाकर मुझे 21 मार्क्स मिल जाते थे 30 में से, जो मैं छोड़ने वाला था। इफ आई विल लेफ्ट दिस पार्ट, आई विल नॉट फेच दिस 30 मार्क्स। तो आप मान के चलिए, आपकी ये जो, बस आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, इसके ऊपर बेटा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाए क्या करना है। आपको कॉन्फिडेंस लेकर आना है। ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस ऑन द एलिमिनेशन अप्रोच, प्रैक्टिस ऑन द वैल्यू पुटिंग अप्रोच, प्रैक्टिस ऑन द कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी अप्रोच। मतलब धुंधला धुंधला सा कुछ तो याद है, उसके बेस पर देखो। आप मान के चलिए आपका रेशियो भी सेम आने वाला है, यानी कि आप भी करीबन 70 to 80% क्वेश्चन रफली बेस पर सही कर दोगे। सो आई होप गाइज इस सेशन में आपको बहुत अच्छी चीजें जानने को मिली, एंड वेरी श्योर कि आपको ये हेल्प करने वाली हैं। जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। फटाफट से आज ही 10 क्वेश्चन उठाओ एंड यू विल फील द सेम डेटा। आप उठाओ पेपर, आपको मालूम चलेगा 30% ईजी, 40-45% मीडियोकर और मॉडरेट पेपर, एंड 20-25% पेपर थोड़ा सा मुश्किल आता है।
और आपको टेक्निक वहां पर लगेगी। रिस्क लो और इफ गैस इफ यू कैन एंड चूज इफ यू डेयर। मैं भी आपको यही बोल रहा हूं कि बेटा रिस्क है तो इश्क है, इश्क है। शैशा हो गया। So this is all guys. I hope this, I am very sure that this will literally work for you, but you have to start working on it. If you have any kind of doubt, let me know in the comment box. I'm ready to help you people. And stay tuned every day. We are coming over here live at 3:30 PM. 11 बजे, सुबह के 11 बजे हमारा एक YT शॉट निकलता है which is based on a 30, 40, 50 second video which is based on how to speed up the calculation. यानी कि मैं आपका कम टाइम लेकर आपको एक बहुत शानदार चीज दे रहा हूं। 50 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर आप एक कॉन्सेप्ट सीख जाते हो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व योर कैलकुलेशन, योर मल्टीप्लीकेशन, योर रूट इन 5 सेकंड्स। 5 सेकंड में आपको रूट निकालना आ जाएगा ओरली, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कल मैं आपको सिखाने वाला हूं, यानी कि आज ही आपका रिलीज हुआ होगा कि रूट ऑफ 315, देखो चेक करो जाके, रूट ऑफ 359 5 सेकंड्स, स्क्वायर रूट ऑफ 359 5 सेकंड, आप चेक करो जाकर। आप टेक्निक देखोगे सर, आप कोई भी क्वेश्चन को ऐसे आप कर सकते हो। और at 6:30 we do release every day NCERT solutions, quick solutions with a detailed description of everything. आप कम टाइम में कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हो और NCERT भी आपकी लगती जाएगी। So guys, this is the schedule. I do come every day 3 times. 11 AM, 3:30 PM live and 6:30 PM a short video so that you will get a quick revision of everything. And guys, we together really have done well, and especially congratulations to our Vedantu Pro students who have secured almost the complete class have secured more than 90% marks, 80% marks. आप चेक करोगे परसेंटेज तो आपको दिखेगा कि 90 to 95% people have secured more than 80% marks, मतलब पूरी क्लास के 80 से ऊपर आए हैं, और 60 to 70% people have secured more than 90-95% marks. So congratulations, and not just in CBSE, it's ICSE or State Board, everyone. So guys, you can also enroll with our Enrollment Pro subscription plan and you can get the benefits. You can start a preparation of the term 1 and term 2. अभी भी टाइम है, 1 महीना बचा हुआ है, 1.5 महीना बचा हुआ है। तो अभी हम लोगों ने 2 चीज़ें लॉन्च की है। वन इज द क्रैश कोर्स दैट वी हैव लॉन्च्ड एंड वन इज द क्रैश कोर्स एंड वन इज योर लॉन्ग टर्म बैच। टर्म 1 से पहले लॉन्च किया, यानी कि अगर आप बूस्टअप चाहते हो तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, ठीक है। और इसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट वी आर कवरिंग on web platform which looks like this, which is having a lot of features, which is going to help you people in understanding and enjoying the lecture को समझने में, सीखने में बड़ा मजा आएगा। And as I have told you, we have something that has never happened before, and it's VIP pass. So on every long-term enrollment, you are going to have a guarantee that you will surely improve, and if not, your money will be refunded back. And as I said, we are launching a new batch. So 4th of October and 25th of October, we are launching Vedantu Commerce new batch of grade 11 and grade 12. तो एक 4 तारीख को लॉन्च होगा, एक 25 तारीख को लॉन्च होगा। आप फटाफट से ज्वाइन करके यू कैन गेट द बेनिफिट्स। और हाँ, एक और चीज, क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, तो वो भी आपके सामने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपका ये जो प्लान है 1 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, जो आपको बेटर लगे आप वो ज्वाइन कर सकते हो। So fall in love with the most boring lectures with your favorite master teachers with the given link in the description box, and do not forget to use the code ADAPRO which will give you 10% off। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, and do not forget to show your love by hitting the like, share and subscribe button। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, see you all on the next day।